राहुल राहुल को दीजिए, राहुल को। अरे आपको दीजिए, उसे नहीं, इसे लगाओ। Hello guys. Hello sir. Hello sir. Hello, sir. Good evening, sir. Good evening sir. Good evening. So I hope I am audible and visible to all of you. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Sir. So very good. So very good evening to all of you. I hope all of you doing well in your studies. Yeah. So from today we are going to start our journey for self-discovery. Today is our first session, which is going to be very scientific and very interesting, because we have a very special speaker, Mr. Bijay Chaudhary sir. Yeah. So in brief, I would like to introduce him. He is working at Infosys as a system engineer, and he delivered many lectures to different colleges. Yeah. So I would like to invite Mr. Bijay sir. Yeah. So Bijay sir, please enlighten the student. Yeah. So please, I hand over to you. Thank you, sir. Sir, voice is not coming. ये लकड़ी Bijay sir, your voice is not coming. Now it is audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. So thank you, Rahul sir. Yeah, thank you, sir. Okay, from all of you, from which college? Rajki Engineering College, Kannauj, sir. Kannauj. Okay, everyone from Kannauj? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. So this is your all of you attending first time this device discover yourself course. Okay, am I right? Yes, sir. Yes sir. Okay. So myself Bijay Chaudhary. Okay, and I have done my BTech from Rajki Engineering College, Bijnor. I have passed out in 2021. Okay. So if any problem is there in between the session, you can tell in chat box also, and let it be this session more interactive. All of you are comfortable with English or Hindi or mix? What all of you want? In both languages, sir. In both mixture. Okay. Yes, sir. Make sure. Okay. Yeah. So I am presenting a PPT. If you are able to see, then you can inform us. Yeah. All of you are able to see? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So this discover yourself session means all the courses are designed by
Radheshyam sir. He has done his MTech from IIT Bombay. You can see his introduction. Okay. So this image is Radheshyam sir. He has done his MTech from IIT Bombay. Okay. And he has designed all this course personally. इन्होंने पर्सनली सारे कोर्स जितने भी कंटेंट है इसके अंदर सब कुछ इन्होंने डिजाइन किया है फॉर द वेलफेयर ऑफ एवरी स्टूडेंट्स. ओके. एंड स्पेशली ये जितने भी कोर्स हैं जो भी कोर्स इन्होंने डिजाइन किया है डिस्कवर योरसेल्फ में ये स्पेशली यूथ को मींस पॉइंट आउट करके व्हाट इज द मींस हाउ यूथ कैन टेक बेनिफिट फ्रॉम दिस. ओके. तो यूथ एज ए आइडियंस को ध्यान में रखते हुए इन्होंने सारे कोर्स पे इसको डिजाइन किया है. तो एज वी आर आल्सो यूथ आल्सो एंड from engineering background and learning so many things with logic and so many things we are learning, so we'll try to gain something from here also. Okay. Okay. So first session, all of you know what the topic of the first session? No. Okay. Yes, sir. Discover yourself. That is the course name. First session is Mastermind Behind the Mysterious Universe. Okay. So let's ask one question from all of you. How many of you believe that yes, there is some superpower or something God is there, like means something like exists? How many of you believe that? Okay. Okay, one person is rising his hand. Hans Yadav. What about others? No one believes. Rahul sir? करो तो नया बुक मिल जाएगा. बात पालिंग करा चप्पल पहन के ना. रॉन्ग आइटम. परवेज खाना. Okay. All of you are requested, if you are at the place where a lot of noise is there, so what you can do, all of you can talk through chat box only. Okay. अगर आप लोग किसी ऐसे जगह पे हैं जहाँ पे बहुत सारा स्टोर हो रहा है तो आप लोग चैट में अपना रिस्पांस दे सकते हैं. नो नीड टू टर्न अनम्यूट योरसेल्फ. ओके. Otherwise it will create disturbances. Okay. So first session is mastermind behind this mysterious universe. So first thing you should understand that this universe is mysterious. Okay. कोई नहीं कह सकता कि हम सब कुछ जानते हैं इस यूनिवर्स के बारे में. So that's why it is a very mysterious. What to tell about this whole universe? Even this Earth planet is also mysterious. Okay. What to tell about Earth planet? Some paintings are also mysterious. छोटी छोटी चीजें भी बहुत ज्यादा mysterious हो जाती है. Okay. तो यूनिवर्स लेवल पे तो mysterious होना वो तो होना ही है. Okay. Now mastermind behind this universe, mysterious universe. अभी इसके पीछे mastermind कौन है? देखेंगे, कोशिश करेंगे जानने की, समझने की कि कोई mastermind है या नहीं है. अगर है तो हम उसे क्यों नहीं जानते हैं, समथिंग लाइक दैट. ओके. Siddhant. We will try to understand all these things in this session. Okay. Yeah. So we will cover 5 points in this session. First will be your observation, means what we are seeing. हम अपने आसपास क्या सारी कौन सी चीजें देखते हैं. What we are able to see around us. हम क्या क्या चीजें अपने आसपास देखते हैं. Your observation. क्योंकि जब हम किसी भी चीज के बारे में बात करते हैं तो बहुत ज्यादा मैटर करता है कि हम क्या देख रहे हैं. हम नहीं, we generally believe on only ourselves. आजकल लोग दूसरों पे विश्वास बहुत कम करते हैं. तो इसीलिए जो पहली बात करेंगे वो करेंगे what is your observation, means what is our observation. What we are seeing with our eyes, what we are listening with our ears, उसके बारे में बात करेंगे. इसके बाद हम देखेंगे साइंटिस्ट ऑब्जर्वेशन, जिन पे हमें बहुत ज्यादा फेथ रहता है, उनका क्या ऑब्जर्वेशन है. ओके. उनकी बातों को उनकी बातें में भी डिस्कस करेंगे. व्हाट दे आर सेइंग अबाउट दिस यूनिवर्स, व्हाट दे आर सेइंग अबाउट दिस मास्टरमाइंड पर्सन, मींस वी विल सी दैट आल्सो.
After that, we will do the question, $2 million question, and activity time, and our prime duty. So these 5 topics we will discuss. In these topics, your observation will be main focused. Okay, सबसे ज्यादा जो फोकस रहेगा हमारा अपने ऑब्जर्वेशन पे रहेगा. और इसके इसेंस क्या रहेंगे? By observing the world around us scientifically, we can see the hand of supreme intelligent designer. Okay. ये हमारा आउटकम रहेगा या बोल सकते हैं इसेंस रहेगा इस होल सेशन का. अगर हम इस इसेंस तक पहुंच पाते हैं, then we can say that our first session is completed and we have understand the first session. अगर नहीं पहुंच पाते हैं, then you can ask the question in last. Okay. Yeah. So let's start. Okay, all of you are able to see, means hear my voice properly. Yes, sir. Yes, sir. Okay, there is no problem in voice. No, sir. Enough loudness is there now. Yes, sir. Sir, loudness is enough. Okay, then okay. So your observation first. Double tap करना. Double tap करो. This will be very interactive session if you see. Okay, तो ये पर्सन क्या कर रहे हैं? बहुत सारे दूरबीन, बहुत बड़ा सा टेलीस्कोप लगा के he is trying to see क्या रियली में गॉड एग्जिस्ट करते हैं, जो कि हम बोल रहे हैं सुप्रीम इंटेलिजेंट डिजाइनर. ओके, तो ऐसा कोई एग्जिस्ट करता है क्या? गॉड जिसे बोलते हैं, गॉड मीन्स व्हाट? ही नोज एवरीथिंग, ही कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग, ही हैज द कैपेसिटी टू डू एनीथिंग व्हाटएवर ही वांट. मींस वी कैन से ही इज द सुप्रीम, ही इज द मास्टरमाइंड. ओके, जिसको बोलते हैं. तो वो क्या है कि रियली में एग्जिस्ट करते हैं क्या? तो ये हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट सेशन. इनिशियली इस सेशन के पहले देखते हैं, कोशिश करते हैं कि जानने की कि वो सच में एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं एग्जिस्ट करते हैं लॉजिक के थ्रू. ओके, एज वी आर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स तो हमें लॉजिक बहुत पसंद होता है. ओके, विदाउट लॉजिक हम कुछ एक्सेप्ट करने के लिए एग्री नहीं करते. ओके, so we will see this does God really exist with logic also. Okay, पूरा सेशन लॉजिक पे बेस्ड है, nothing is out of logic. Okay, so who create and maintains this beautiful and harmonious universe? ये everyone knows this universe is very beautiful, this nature is very beautiful and very harmonious also. Okay, अगर ह्यूमन बीइंग उसमें इंटरप्ट ना करे तो नेचर ऑटोमेटिकली अपने आप सारा कुछ फंक्शनिंग, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल मेंटेन रहता है, ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन रहता है, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड का लेवल मेंटेन रहता है, ओजोन परत में कोई डिप्लीशन नहीं होता है. मींस एवरीथिंग इज ऑटोमेटिकली हार्मोनाइज्ड. ओके, इफ देयर इज नो इंटरप्ट मींस ह्यूमन बीइंग्स उसमें क्या करता है? इंटरप्ट नहीं करता. इफ देयर इज नो इंटरप्शन फ्रॉम द ह्यूमन बीइंग्स तो ये ऑटोमेटिकली हार्मोनाइज है. तो ये सब कैसे ऑटोमेटिकली हार्मोनाइज है और इतना ब्यूटीफुल है, तो इसे बनाया किसने? कौन इसको मेंटेन करके रखता है? आपको पता है कोई चीज अगर ऑटोमेटिकली हार्मोनाइज है तो उसे मेंटेन करके रखना पड़ता है. ओके, आपके पास होम होगा, घर बना होगा, आप लोगों ने घर बनवाया होगा, तो उसको टाइम टू टाइम पेंट करना पड़ता है. ओके, जिससे कि वो अच्छा लुक हमेशा परमानेंट मेंटेन होकर रखे, उसको मेंटेन करके रखना पड़ता है. ओके, ऐसे ही इस ये नेचर है, तो इस नेचर को कौन मेंटेन करके रखता है? तो वी हैव टू सी दैट. ओके, नेक्स्ट इज योर ऑब्जर्वेशन में हम पहला ABCDEF. ओके, आर्टिस्ट्री के बारे में देखेंगे, ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन, क्रिएशन, डिजाइन, एनर्जी एंड फ्लॉलेस लॉस के बारे में देखेंगे. तो हम देखेंगे कि कैसे एक दूसरे से ये कनेक्टेड है. ओके, तो फर्स्ट वन इज आर्टिस्ट्री. ओके, फर्स्ट इज आर्टिस्ट्री. ओके, यहाँ पे कुछ आपको आर्ट दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पे. एवरीवन इज एबल टू सी? पेंटिंग्स, कुछ पेंटिंग्स दिखाई दे रहे हैं आपकी स्क्रीन पे? Yes, sir. Yes, sir. या लेना. तो ये जो पेंटिंग्स है, आपको पता है जो फर्स्ट पेंटिंग है किसकी है? Yes, sir. मोनालिसा. देखिए दिस Mona या दिस पेंटिंग वाज सो फेमस दैट ऑलमोस्ट एवरीवन नोस. ओके, जिनका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट होगा मिस्टीरियस वर्ल्ड के बारे में, रहस्यमय चीजों के बारे में, तो उनको मोनालिसा की फेमस पेंटिंग के बारे में पता होगा. ओके, ऑलमोस्ट. Yes, sir. 8th 9th में पढ़ाया गया. Yeah, so that is why. Who has created this painting? Leonardo da Vinci. इन्होंने इस पेंटिंग को बनाया. ये किसका पेंटिंग है? Either it is a painting of female or it is a male. Okay, किसी एक पर्सन का तो पेंटिंग है. तो उसको किसने बनाया? लेओनार्डो दा विंची ने बनाया.
इसके बाद सेकंड में ये बहुत ज्यादा फेमस पेंटिंग है, दीज आर नॉट ऑर्डिनरी पेंटिंग। हो सकता है हमें सिर्फ मोनालिसा की पेंटिंग के बारे में पता हो, ओके, दैट मे बी, बट ये सारी पेंटिंग्स बहुत ज्यादा फेमस है, ओके। ये जो वोन गोरार्ड जो पेंटिंग्स बनाए, यू कैन सी दैट इट लुक्स लाइक रियल, ओके। और ये क्या है, पेंटिंग है। सिमिलरली टॉमस सेंक्यू ने बनाया, ये एक वाटरफॉल का पेंटिंग है, दिस आल्सो लुक्स लाइक रियल ओनली, ओके। Similarly, हेनरी ने भी पेंटिंग बनाया रोज का, इट आल्सो लुक ऑलमोस्ट रियल, बट इट इज अ पेंटिंग मेड बाय देम एंड दीज आर वेरी फेमस पेंटिंग। ये सारे आर्ट है, ये सारे आर्ट है, और इनके पीछे मीन्स इनको जिसने डिजाइन किया वो आर्टिस्ट है। तो हमें क्या है, ये पेंटिंग्स, ये आर्ट के बारे में पता है, और इसके पीछे जिसने इसे डिजाइन किया है उसके बारे में पता है, सबका नाम लिखा हुआ है नीचे, यू कैन सी, ओके, बिनो। तो अभी क्वेश्चन क्या है इसके पीछे, क्वेश्चन ये है, जब हम इसी चीज को रियल में देखते हैं, रियल इन द सेंस किसी ब्यूटीफुल पर्सन को रियली में देखते हैं, ओके, नेचर की ब्यूटी को, नेचर ब्यूटीफुल माउंटेन्स को रियल में देखते हैं, वाटरफॉल्स को रियल में देखते हैं, रोजेस को जो कि रियली में एग्जिस्ट करते हैं, बायोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी उसके अंदर होता है, तो उसको किसने बनाया? वो लियोनार्डो दा विंची नहीं क्लेम कर सकते हमने बनाया। ये रोज की जो पेंटिंग है हेनरी क्लेम नहीं कर सकते कि वी हैव मेड इट, नो। अभी क्या है, उसी चीज की फोटोकॉपी किसने बनाई उसका हमें पता है नहीं, बट उसी चीज को रियल में किसने बनाया, वी डोंट नो। एंड इफ वी डोंट नो, वी कैन नॉट से दैट नो वन हैज क्रिएटेड इट। मे बी हो सकता है इसी यहाँ पे पिछली स्लाइड में जितनी भी पेंटिंग्स थी उसी में से कुछ पेंटिंग्स को आप में से नहीं पता हो किसने बनाया है, but if you don't know, you cannot say no one has made it. Yes, someone has made it. It may be that we know or we don't know. Similarly, ये क्या है, ये सारे रियल है। तो जब वो जो फेक है, मीन्स जो इनकी कॉपी है, उनको बनाने के लिए एक पर्सन की जरूरत पड़ती है, एक आर्टिस्ट की जरूरत पड़ती है। तो ये जो रियली में एग्जिस्ट करते हैं उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, दे आर मोर कॉम्प्लेक्स देन देम। इनको बनाने के लिए कोई एग्जिस्ट क्यों नहीं करता? ये ऑटोमेटिक कैसे आ सकती है? हाउ इट इज पॉसिबल? ओके, सो दैट इज इट। So who is the artist? Okay, beautiful videos are also there, but somehow we are not able to play this video on Zoom. Okay, it will take too much time to switch. Okay, so यहाँ पे एक छोटा सा एक्टिविटी था कि एक अगर आपको आर्टिफिशियल रोज बनाना तो किस किस चीज की जरूरत पड़ती है। ओके, आर्टिफिशियल रोज बनाने के लिए हमें सीजर, गम एंड सम कलरफुल पेपर्स की जरूरत पड़ती है। ये सारी रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है, और उसके बाद हमें अपना एफर्ट डालना पड़ता है बनाने के लिए, तो जाके ये आर्टिफिशियल रोज हम क्रिएट कर पाते हैं। बट दैट आर्टिफिशियल रोज आल्सो नॉट एग्जैक्टली इक्विवेलेंट टू द रियल रोज। क्या ये इक्विवेलेंट है रियल रोज के? नो। रियल रोज में बहुत ज्यादा बायोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटीज होती है, उसमें छोटे छोटे टिश्यूज होते हैं, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, पता नहीं क्या राइबो, सो मेनी थिंग्स आर देयर। ओके, वी आर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, सो वी डोंट टेक केयर ऑफ द बायोलॉजी। ओके, बट देयर इज बायोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी, देयर इज रियल फ्रेग्रेंस। इसमें क्या है, कोई फ्रेग्रेंस नहीं। तो जो रियल एग्जिस्ट कर रहा है, जब हमें उसकी डुप्लीकेट बनाने के लिए इतना रॉ मटेरियल्स की जरूरत है, इतने ज्यादा एफर्ट की जरूरत है, और एक पर्सन की जरूरत है उसको बनाने के लिए, तो जो रियल में एग्जिस्ट करता है वो ऑटोमेटिकली कैसे हो सकता है? ओके, what to speak of the flower in nature with their delicateness, biological complexity, fragrance, and their shape and forms. So this is the artistry. So every artistry requires an artist, that is sure. So if that is the true, then why the real things which exist in our nature, that also should require the real person who has created all these things. Okay, so that is the conclusion about this A for artistry, means for every artistry there is artist. Okay, are you able to means understand this point? Yes, sir. Yeah, किसी को कोई confusion? हाँ, next one is the beautiful organization. बीज होते हैं, मधुमक्खी। एक ही एग्जांपल लेंगे, यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल दिया है, बट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम एक ही एग्जांपल लेंगे। मधुमक्खी होते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, इनका एक बहुत ज्यादा मींस वी कैन से फंक्शनिंग बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजेशन होता है। इफ यू सी दैट, तो इनमें क्या होती है, एक क्वीन भी होती है,
जिसके आर्डर सब कोई फॉलो करता है। और उसमें जो ऐसी मधुमक्खियां होती है जो शहद इकट्ठा करती है, देयर ओनली वर्क इज टू कलेक्ट द हनी। और कुछ बीज होती है जो फाइटर्स बीज होती है, जो लड़ाई के काम में आती है, ओके, जो कि अटैक करती है दूसरे के ऊपर, ओके, दे आर प्रोटेक्टिंग दी। तो ये क्या है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हर एक प्रकार की जो है मींस बीज एग्जिस्ट करती है, और ये सारे मिलके क्या करती है, उस ऑर्गेनाइजेशन को रन करती है। और उन ऑर्गेनाइजेशन में चीफ कौन होता है, क्वीन बी, दैट इज द चीफ वन, ओके। तो सिमिलरली ये जो पूरा नेचर है ये भी एक प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन है, ओके। और इस नेचर का चीफ कौन है, वी डोंट नो। तो हु इज द ऑर्गेनाइजर ऑफ दिस होल and beautiful organization? So that is the, and there are so many other things, ant hills also are given. Ant hills का सबसे जो main you can say जो सबसे खास बात होती है ant hills की, ओके, इसका अंदर का टेम्परेचर ऑलवेज 25 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन रहता है, बाहर 40 डिग्री 41 डिग्री 42 डिग्री व्हाट एवर टेम्परेचर में भी, बट इसके अंदर का टेम्परेचर जो होता है ऑलवेज मेंटेन रहता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। Even scientists are trying now to build this type of building, okay, इससे आइडिया लेके अभी ऐसी बिल्डिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इको फ्रेंडली बिल्डिंग जिसे आप बोलते हैं, जो कि क्या होता है अंदर टेम्परेचर मेंटेन रहता है 25 डिग्री टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। दे आर कॉपिंग ऑल दिस थिंग्स फ्रॉम हियर ओनली, ओके। दिस इज आल्सो एन ऑर्गेनाइजेशन, एंट हिल एंड स्पाइडर वेब, कोकून एंड वीवर, सो मेनी ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं। सो मेन पॉइंट क्या है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए कोई एक ऑर्गेनाइजर होता है, ओके, कोई एक लीडर होता है। तो सिमिलरली ये जो ब्यूटीफुल क्रिएशन है, ये ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन है, इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए हु इज द ऑर्गेनाइजर, ओके। नेक्स्ट, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसमें आप लोगों को बहुत इंटरेस्ट आएगा, क्रिएशन, ब्यूटीफुल क्रिएशन। आर यू एबल टू सी दिस कार? Yes, sir. या अगर ये कार है तो किसी ना किसी ने बनाया होगा, अभी तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी में। यस, ऑफ कोर्स समवन हैज मेड इट, किसी ना किसी ने तो इस कार को बनाया होगा, दैट इज क्लियर। सिमिलरली दिस इज कंप्यूटर, तो कोई ना कोई तो इसके सारे पार्ट्स को असेंबल किया होगा, इसको बनाया होगा, जो भी किया होगा, और उसके बाद क्या है, हम इसको यूज कर रहे हैं, तो कोई ना कोई तो इसे मेंटेन कर रहा होगा, कोई ना कोई इसे असेंबल किया होगा, ओके। इसके बाद वॉच, इसको भी किसी ने डिजाइन किया होगा। what is the name of this architecture, anyone knows? या एफिल टावर, तो इसको भी किसी ने बनाया होगा। यस, ऑफ कोर्स आर्किटेक्चर मालवेयर, समवन इरेक्टेड इट, किसी ना किसी ने तो इसको कर्व किया। बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है, इसको भी कोई बनाता है, बहुत सारे अच्छे वंडरफुल स्कल्पचर्स होते हैं, इसको भी कोई ना कोई बनाता है। तो जब हम इतने छोटे छोटे लेवल पे बात करते हैं वंडरफुल स्कल्पचर्स की, बड़ी बड़ी स्काईस्क्रैपर्स बिल्डिंग की, और कार्स की, कंप्यूटर्स की, वॉचेस की, उसको बनाने के लिए, उसको क्रिएट करने के लिए किसी ना किसी चीज की जरूरत पड़ती है। समवन इज देयर बिहाइंड, ओके, कोई पर्सन होता है इसके बिहाइंड, ओके। इट इज नॉट समवन कोई ऐसा ही आ गया, नथिंग, कोई पर्सन एग्जैक्टली एग्जिस्ट करता है एवरीथिंग, एवरी क्रिएशन के बिहाइंड। तो जो ये क्रिएशन है, होल क्रिएशन है, अगर हम और ज्यादा बड़े लेवल पे जाएं तो ये जो पूरा यूनिवर्स है, इट इज आल्सो अ क्रिएशन। तो क्या इस यूनिवर्स को क्रिएट करने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ती? एवरीथिंग कम्स फ्रॉम ऑटोमेटिक, नो। जब एक छोटा सा घड़ी, एक छोटी सी कार, कंप्यूटर नहीं आ सकता ऑटोमेटिकली, तो ये जो पूरा क्रिएशन है ये ऑटोमेटिकली कैसे आ सकता है? दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ दैट क्रिएशन। जो हम कंप्यूटर, कार, सभी चीज की बातें करते हैं, वो भी उसी क्रिएशन यूनिवर्स का ही पार्ट है। बट क्या है, उसका जो क्रिएटर्स है वो हमें डायरेक्टली आइडेंटिफाई हो जाते हैं, उनको हम डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने माइंड, इंटेलिजेंस, अपने सेंसेस के द्वारा, ओके। आंखों से देख सकते हैं उन्हें, ओके। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली परसीव कर पाते हैं, तो उन्हें वी कैन से या ही इज द क्रिएटर एंड दिस इज द क्रिएशन। बट क्या है, जो यूनिवर्स है ये हमारे माइंड में फिट नहीं होता है, बिकॉज वी हैव लिमिटेड इंटेलिजेंस ना, ओके। तो हम क्या कहते हैं, नहीं ये ऑटोमेटिक है, बिकॉज वी डोंट। So it is not always true that if something we don't know, so that is wrong, okay। ऐसा नहीं हो सकता है हमें ना पता, okay। We have to find, yes we can find if we want, okay।
that capacity is there within us. Next, so every creation is there is creator. आप लोगों को पता है, ये आपके स्क्रीन पे अभी एक इमेज दिखाई दे रही होगी, छोटी सी इमेज, किस चीज का सीड है? Anyone knows? This is seed for which tree? Yes, sir. Okay. Belson D. ठीक है, एटलीस्ट ओके ओके गुड गुड, एटलीस्ट आप बताइए इसका साइज, आपको आपकी स्केल भी दिखाई दे रहा होगा, तो बताइए आप इमेजिन करके इसका साइज कितना होगा, ऑलमोस्ट कितना साइज का होगा? सर 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर, ओके 1 सेंटीमीटर, 1 to 1.5 और 2 सेंटीमीटर मैक्सिमम, ओके है ना? 1.5 to 2 सेंटीमीटर है। यस सर, यस। Yes, sir. या ओके, तो अभी देखिए ये 1.5 to 2 सेंटीमीटर का एक सीड है। अभी इसके अंदर से कितना बड़ा ट्री निकलता है? ये दुनिया के सबसे बड़े पेड़ का सीड है। यू कैन इमेजिन, ये दुनिया के सबसे बड़े पेड़ का एक छोटा सा सीड है, और उतना बड़ा पेड़ इसी के अंदर फिट किया गया है। ऐसा डिजाइन है, ऐसा डिजाइन करके बनाया गया है कि उतना बड़ा ट्री इसके अंदर एडजस्ट हो गया है। ओके, यू कैन सी द इमेज आल्सो। Yeah, all of you are able to see? यस सर, यस। Yes, yes. Yes. This is the world largest tree, giant sequoia. तो ये वो जो सीड था उसी का सीड था, जायंट सिकोया का। और वो जो सीड किसने डिजाइन किया? ओके, नो वन कैन से आई हैव डिजाइन्ड दैट सीड। ओके, तो हु हैज डिजाइन्ड दैट सीड? वो छोटी सी सीड के अंदर किसने इतने बड़े पेड़ को रख दिया लाके? ओके, नो मैन कैन क्लेम, एटलीस्ट कोई इंसान क्लेम नहीं कर सकता कि मैंने किया, इतना तो कॉमन सेंस है। ओके, यू कैन कंपेयर हियर। ओके, एंड वन थिंग आल्सो, जो कंपैरिजन करने के बाद आता है, एक आप लोगों को अभी टेक्नोलॉजिकल का एरिया है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो आप लोगों को प्रोसेसर के बारे में पता होगा, मेमोरी के बारे में पता होगा। ओके, तो आप लोगों के पास हार्ड डिस्क होगा, 1 टेराबाइट 2 टेराबाइट, मेमोरी कार्ड होंगे 64 GB, 128 GB, मैक्सिमम 512 GB मेमोरी कार्ड। ओके, तो क्या है, उसमें लिमिटेड स्पेस रहता है। अगर 64 GB का है तो आप 1000 मींस लेस देन 1000, अगर आप, डिपेंड करता है क्वालिटी क्या है आपकी। ओके, आप लोग इतने ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, बट एटलीस्ट 64 GB डाटा से आप 64 GB से ज्यादा डाटा उस अपने मेमोरी कार्ड में नहीं रख सकते। अगर आपका मेमोरी कार्ड 64 GB का है, देयर इज लिमिटेड इन स्पेस। ओके, उसकी साइज भी है, हार्ड डिस्क उससे बड़ा है, उसमें थोड़ा और ज्यादा डाटा आप स्टोर करके रख सकते हैं। ओके, बट जस्ट सी दिस ह्यूमन ब्रेन, जस्ट सी दिस ह्यूमन ब्रेन, and this MD author of the brain, he has done MD, he is MD post. Okay, Dr. Richard Restad, what his lines about the brain, that human brain can store more information than all the libraries in the world. जो human brain है, ये कितना इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है? इतना इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है जितना कि पूरी दुनिया की लाइब्रेरी के बुक्स में एग्जिस्ट करता है। यू कैन इमेजिन। ओके, खैर आप लोगों को अभी थोड़ा सा ये हो सकता है ज्यादा लग रहा हो, क्योंकि हम जब ट्राई करते हैं तो एक भी बुक हमारे समझ में नहीं आता है। ओके, क्योंकि एक भी बुक हमें याद नहीं रहता है, बट या दिस इज द कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ओके, भले ही हमें याद रहे ना रहे, दैट्स अनदर थिंग, बट दैट इज द कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन ब्रेन। इफ यू आर एबल टू यूटिलाइज योर ब्रेन फुल्ली, देन यू मस्ट बी एबल टू डू ऑल दिस थिंग्स। ओके, सो इतना बड़ा हमारे पास ब्रेन है, और उसकी कैपेसिटी कितनी है? ऑलमोस्ट अनलिमिटेड, यू कैन से। ओके, करीब अनलिमिटेड। ओके, बट नो, दैट इज नॉट अनलिमिटेड, बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग्स एंड वी आल्सो हैव लिमिटेड थिंग्स। ओके, दैट इज नॉट लिमिटेड, बट व्हाट वी वांट टू से दैट वो जो छोटा सा चिप होता है, उसके कितने ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज होते हैं, कितना कॉम्प्लेक्स होता है, उसको बनाने में कितना ज्यादा इफर्ट लगता है। ओके, माइक्रो प्रोसेसर होता है, उसको बनाने में कितना ज्यादा इफर्ट लगता है, कितने छोटे छोटे पार्ट्स उसमें होते हैं। ओके, तो ये जो ह्यूमन ब्रेन है, उसको बनाने में कितना इफर्ट लगा होगा,
उसमें कितने छोटे पार्ट्स होंगे। क्यों? क्योंकि ये उससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, उससे भी ज्यादा एडवांस है और इसकी उससे भी ज्यादा कैपेसिटी है। तो क्या इसको बनाने में किसी पर्सन की जरूरत नहीं पड़ी होगी? उस माइक्रोचिप को बनाने के लिए कितने सारे पर्सन, कितने, एक बंदा रिसर्च करता है, दूसरा बंदा उसको लैब में लेकर के अप्लाई करता है उस रिसर्च पेपर को, फिर तीसरा बंदा फैक्ट्री में प्रोड्यूस करता है। ओके, तो कितने पर्सन एक छोटे से चिप के पीछे लगे होते हैं प्रोड्यूस करने के पीछे। तो ये जो ह्यूमन ब्रेन है, इसको बनाने के लिए क्या ये ऑटोमेटिक डिजाइन होके आ गया मार्केट में? ओके, या हो सकता है हमें ऑटोमेटिकली मिल गया, देन वी आर सेइंग दैट इट्स कम बाय चांस, बट इट इज नॉट एग्जैक्टली द थिंग्स इज देयर। ओके, इसके पीछे भी एक डिजाइनर है, कोई डिजाइन किया है इस ह्यूमन ब्रेन्स को। ओके, बट वो जो डिजाइनर है वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, एटलीस्ट ह्यूमन बीइंग से ज्यादा इंटेलिजेंट है। क्यों? क्योंकि उसने ऐसा डिजाइन बनाया है जो कि आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इसकी कैपेसिटी कितनी ज्यादा है। ओके, तो एवरी डिजाइन देयर इज अ डिजाइनर। उसने डिजाइन ऐसा किया कि उस 2 सेंटीमीटर के सीड में उतना बड़ा जाइंट सिकोया का ट्री एडजस्ट हो गया। so that is the mastermind. Okay, who is designing everything. Okay, you can see this DNA also, same thing. Now next one, fifth one is energy and energetic. Yeah, ठीक है। आई वॉन्ट टू जस्ट आस्क वन क्वेश्चन फ्रॉम ऑल ऑफ यू। हम आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि अगर आप कमरे में बैठे हुए हैं और आपका जो विंडो है वो शीशे का है, मीन्स कांच का बना हुआ आपका विंडो है, और एक स्टोन बाहर से उड़ता हुआ ऐसे आया और आपके सर पे आके लग गया, तो व्हाट विल बी योर फर्स्ट रिएक्शन? आपका जो सबसे पहला रिएक्शन होगा वो क्या होगा? एनीवन? सर पहले तो एंग्री होगी बहुत ज्यादा। पहले क्या होगी? एंग्री होंगे। एंग्री होंगे। किस पे एंग्री होंगे? सर पेन होगा। ये तो ठीक है, पहले तो हमारे मन में यही आएगा, गुस्सा होंगे कि किसने फेंका हमें, किसने मारा। ओके, तो व्हाट इज द मेन पॉइंट? किसने मींस हु हैज डन दिस। तो मतलब किसी ना किसी ने तो उसे किया है। ओके, इतना कॉमन सेंस हमें पता है, हमने देखा नहीं कि बाहर से, हमको बस इतना पता है खिड़की तोड़ते हुए हमारे सर पे आके लगा, तो हमारे मन में पहला क्वेश्चन ये आता कि किसने किया ऐसा। ओके, तो किसने किया ऐसा मीन्स ऑटोमेटिकली हमारे पास इतना अंडरस्टैंडिंग है कि अगर ये उड़ता हुआ बाहर से आया है, इसके अंदर एनर्जी है। ओके, तो जरूर किसी ना किसी ने इस स्टोन को एनर्जी प्रोवाइड किया है। ओके, ऑटोमेटिकली स्टोन को पास एनर्जी नहीं आती है। ओके, तो दैट इज कॉमन सेंस। ओके, इतना हमें पता है। तो सिमिलरली जो सन है हमारा, जो पूरे ऑलमोस्ट होल सौरमंडल यूनिवर्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है, यू कैन से amount of energy consumed by human race throughout the entire history। अब तक जितना भी एनर्जी ह्यूमन बींग्स ने कंज्यूम किया है, उतना एनर्जी जो सन है वो 1 सेकंड में इमिट कर देता है। तो दैट इज द कैपेसिटी ऑफ आवर सन। ओके, तो जब ये स्टोन के पास एनर्जी जो है वो उसको भी प्रोवाइड करने के लिए कोई पर्सन की जरूरत पड़ती है। तो जो सन है जिसके पास इतनी ज्यादा एनर्जी है, उस एनर्जी को प्रोवाइड करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। दैट एनर्जी कम्स ऑटोमेटिक। Okay, by being intelligent engineering student, we may say that some fusion reaction is going on because of that energy is releasing from the sun। But then also same engineering student may ask कि फ्यूजन रिएक्शन होने के लिए कितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड होती है? ऑलमोस्ट ग्रेटर देन 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। किसी भी फ्यूजन रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए उतना ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। तो हु हैज पुटेड दैट एनर्जी? Okay, so that may be the question also। Okay, so question is that कोई भी एनर्जेटिक चीज है तो उसके पीछे कोई ना कोई एनर्जी प्रोवाइडर होगा। सिमिलरली अगर सन है तो उसके भी पीछे कोई ना कोई है जो एनर्जी सन को प्रोवाइड करता है। ओके, someone is there who has provided this energy to sun। Okay, so who is that person? ओके, हमारे पास लिमिटेड कैपेसिटी, हम एक स्टोन को एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं और वो स्टोन क्या कर सकता है? मैक्सिमम एक कांच को तोड़ सकता है। बट जो सन की एनर्जी है वो क्या कर सकती है? पूरे सौरमंडल को
मेंटेन करके रखती है। सो दैट इज द कैपेसिटी, हमारी कैपेसिटी लिमिटेड। और जो मास्टरमाइंड है, जो सन को एनर्जी प्रोवाइड करता है, जो वी कैन से समथिंग सुपर हीरो टाइप का है, वो क्या करता है, उसकी जो एनर्जी, वो जो एनर्जी प्रोवाइड करता है वो यू कैन से कितना ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है, लाइक सन, उसके पास सन। ओके, सिमिलरली नेक्स्ट वन इज द रूल्स एंड रेगुलेशंस, लॉज। तो हमने बहुत सारे लॉज मींस लॉज पढ़े हैं। आप लोगों ने केमिस्ट्री में, फिजिक्स में बहुत सारे लॉज पढ़े होंगे। ओके, कैसे लॉज, लाइक पीरियोडिक लॉज, thermodynamics laws, law of optics, law of gravitation, बहुत सारे लॉ पढ़े होंगे आप। ओके, बहुत सारे लॉज होते हैं और हमें पता है ये सारे लॉज जो हैं, ये सारे जो रूल्स हैं, ये क्या है, किसी ना किसी ने बनाए हैं। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, पीरियोडिक लॉ किसने बनाया, मेंडलीव। लॉ ऑफ ऑप्टिक्स भी किसने बनाया, किसी पर्सन ने बनाया। ओके, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी यू कैन सर्च, समवन हैज मेड दैट। ओके, तो ये सारे रूल्स होते हैं किसने बनाया। अभी आपका स्कूल का टाइमिंग या फिर वी कैन से कॉलेज का टाइमिंग कुछ तो होगा, 9:30 10 o'clock वट एवर इट मे बी, तो उसका भी, वो भी एक रूल है, वो भी एक लॉ है। उसको किसने बनाया, वी कैन से हमारे जो डायरेक्टर सर है उन्होंने बनाया, या फिर रजिस्ट्रार सर है उन्होंने बनाया। तो जो भी रूल्स हैं उनको किसी ना किसी ने बनाया है, कोई ना कोई है जो उस रूल को बनाया है, क्योंकि या फिर उसको खोजा है। तो समवन इज देयर बिहाइंड एवरी लॉ। तो अभी क्वेश्चन क्या है, यू कैन सी देयर इज सम पर्सन इज ब्यूटीफुल, समवन इज अगली, समवन इज हैंडसम। कोई तो हैंडसम नहीं होता, कोई रिच होता है, कोई गरीब होता है, कोई डॉक्टर होता है, कोई लेबर होता है। तो इतने सारे टाइप के लोग हमारे सोसाइटी में होते हैं। कोई ब्यूटीफुल है, कोई अगली है, कोई रिच है, कोई मोटा है, कोई बहुत डॉक्टर है, कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, कोई गरीब है, कोई लेबर है। तो ये सारे लोग हमारे सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं। तो क्या ये सारे लोग, वन थिंग आल्सो इज देयर कि हम क्या चूज कर सकते हैं, हम क्या चूज नहीं कर सकते। ओके, एज अ ह्यूमन बीइंग्स व्हाट वी कैन चूज, यू कैन सी इन द नेक्स्ट स्लाइड, वी कैन चूज एजुकेशन। हम चूज कर सकते हैं अपना एजुकेशन, हमें किस कॉलेज में पढ़ना है, हमें कहाँ तक पढ़ना है। हम 10th तक पढ़ना चाहते हैं, 12th तक पढ़ना चाहते हैं, ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, M.Tech B.Tech PhD, मीन्स वी कैन चूज आवर ग्रेजुएशन। वी कैन चूज आवर जॉब, कौन सी कंपनी में हमें जॉब करना है, इन्फोसिस, TCS, विप्रो, एसेंचर, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, जिसमें भी चाहे हम अपना जॉब चूज कर सकते हैं, किस में जॉब करना है। हस्बैंड या फिर वाइफ को चूज कर सकते हैं कि हमें किसके साथ अपना लाइफ स्पेंड करना है, वो भी हम चूज कर सकते हैं। दैट इज आल्सो इन आवर हैंड। कौन सी कार खरीदनी है, कौन सा घर खरीदना है, ये सारी चीजें हम चूज कर सकते हैं। ओके, बट समथिंग आर देयर दैट वी कैन नॉट चूज। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम चूज नहीं कर सकते, जो कि जस्ट प्रीवियस स्लाइड में हमने दिखाया था। कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई अगली है, मीन्स कोई ब्यूटीफुल है। तो वो सारी चीजें यूज जनरली चूज नहीं कर सकता, बट एक्सप्लिसिटली यहाँ पे दिया हुआ है क्या क्या चीजें हम चूज नहीं कर सकते। आवर पेरेंट्स, वी कैन नॉट चूज पेरेंट्स। हम ये नहीं कह सकते नहीं हमें ये पिताजी पसंद नहीं है, हमको कोई दूसरे पिताजी, नो, वी कैन नॉट से दैट दिस मदर इज नॉट गुड, आई वांट सम अदर। ओके, नहीं, जो हमारे पेरेंट्स है वो पेरेंट्स है, वी कैन नॉट चेंज, वी कैन नॉट चूज। ओके, दैट इज क्लियर। आवर फेस कट, वी कैन नॉट चूज आवर फेस कट, जो हमें मिला है वी हैव टू एक्सेप्ट दैट ओनली। ओके, वी कैन नॉट चूज आवर इंटेलिजेंस। कभी कभी देखा होगा कोई पर्सन है, पढ़ता रहता है, उसे समझ में नहीं आता, कोई तो एक ही बार में पढ़ के सब कुछ समझ जाता है। ओके, ये सारी चीजें क्या है, हम चूज नहीं कर सकते। तो जब हम नहीं चूज कर सकते तो हमें किस बेसिस पे ये सारी चीजें प्रोवाइड की जाती है। क्यों किसी को इंटेलिजेंट बनाया जाता है, क्यों कोई इंटेलिजेंट नहीं होता है, कोई क्यों ब्यूटीफुल होता है, क्यों कोई अगली होता है। ओके, किसी के पेरेंट्स बहुत ज्यादा रिच होते हैं, किसी के पेरेंट्स बहुत ज्यादा पुअर होते हैं। व्हाई ऑल दिस थिंग्स आर देयर। ओके, किस बेसिस पे ये दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं लाभ करना। क्या बोलते हैं, लाभ करना। आपने जो कार्य किया है उसी के बेसिस पे वो प्रोवाइड किया जाता है आपको। पेरेंट्स उसी बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं, इंटेलिजेंस या फिर रिच पर्सन के यहाँ पैदा होंगे कि गरीब के यहाँ। तो आप देख सकते हैं अपने सोसाइटी में कोई बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, इसका मतलब उसने कुछ ना कुछ अच्छा किया है। ओके, कोई बहुत ज्यादा धनी है तो उसने कुछ ना कुछ अच्छा किया है। हाँ, वो अलग बात है कि अभी गड़बड़ कर रहा है तो उसको फिर से वापस गड़बड़ मिलेगा, दैट्स अनदर थिंग। बट
उसके पास अच्छा है तो इसका मतलब उसने कभी ना कभी कुछ ना कुछ अच्छा किया है, तो दैट इज द थिंग, दैट इज लॉ ऑफ कर्मा। ओके, अगर आपने कुछ अच्छा किया है तो यू विल गेट द रिजल्ट, दैट इज द थिंग। तो ये जो लॉ ऑफ कर्मा है, अभी हमने पढ़ा मेंडली पैराडिक लॉ, सो मेनी लॉज आर देयर, उन सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को, उन सारे लॉज को किसी ना किसी ने बनाया था। तो ये जो लॉ ऑफ कर्मा है, इसको किसने बनाया? पॉइंट इज दिस, इसको किसने बनाया? इसको भी किसी ने बनाया होगा, ये ऑटोमेटिक नहीं आ सकता। एंड यस, ये भी क्लियर है कि जिसने भी बनाया है वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। दैट्स व्हाई दिस सेशन इज नोन एज मास्टरमाइंड बिहाइंड दिस मिस्टीरियस। ओके, तो मास्टरमाइंड है जिसने बनाया है। ओके, ही इज मोर इंटेलिजेंट देन ऑल ऑफ अस। ओके, नेक्स्ट, साइंटिस्ट ऑब्जर्वेशन। तो अभी आपका राहुल सर, कैन वी टेक 5 to 10 minutes more? Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके, ठीक है। तो थोड़ा सा साइंटिस्ट ऑब्जर्वेशन, अभी योर ऑब्जर्वेशन इज वेरी बिग। अभी साइंटिस्ट ऑब्जर्वेशन देखेंगे कि साइंटिस्ट लोग क्या कहते हैं। ओके, क्या उनका राय है इस बारे में, जिस मास्टरमाइंड की बात कर रहे हैं उसके बारे में साइंटिस्ट लोग क्या कहते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे फेमस साइंटिस्ट हैं जिनके बारे में आप लोग बचपन से सुनते आए हैं, तो डोंट वरी अबाउट इट। कोई यहाँ पे ऐसा साइंटिस्ट नहीं आएगा जिसके बारे में आप ना जानते हो, बिकॉज आप लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट एवरी साइंटिस्ट के बारे में आप लोग जानते हैं। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन, there is a perfect brain behind all the natural physical laws. This is the statement of Albert Einstein. Okay, ये क्या कहते हैं कि ये जो जितने भी नेचुरल फिजिकल लॉज हैं, इनके पीछे कोई ना कोई एक परफेक्ट ब्रेन है। ओके, कभी अर्थ का मून से क्रैश नहीं होता, कभी अर्थ का सन से क्रैश नहीं होता, कभी प्लैनेट्स का आपस में क्रैश नहीं होता। ओके, अभी देखिए इतनी सारी गाड़ियां चलती हैं रोड्स पे। ओके, ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, ट्रैफिक पुलिसमैन होता है, फिर भी एक्सीडेंट हो जाता है। ओके, फिर भी एक्सीडेंट हो जाता है। बट जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें इतने सारे 9 प्लैनेट्स आर देयर। ओके, वी कैन से 8 प्लैनेट्स आर देयर। वो सारे हमेशा रोटेट करते रहते हैं। और कितनी स्पीड से रोटेट करते हैं, यू कैन सर्च ऑन गूगल, ये आपकी गाड़ी की स्पीड से कई गुना जाता है। ओके, और उतनी स्पीड से रोटेट करने के बाद भी उनका आपस में कोई क्लैश नहीं होता है। तो दैट इज द परफेक्ट ब्रेन हु हैज मेड दिस लॉ कि ये जो अर्थ है इसी में रोटेट करेगा, मून को इसी में रोटेट करना है, कब किसी डिग्री पे रोटेट करना है, एवरीथिंग इज देयर। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि कोई परफेक्ट ब्रेन है जो इस सारे नेचुरल लॉ को बनाया है। सेकंड, श्रोडिंगर, आप लोगों ने पढ़ा होगा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ओके, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो ये वही साइंटिस्ट है, नोबेल विजेता है, नोबेल लॉरेट फिजिसिस्ट श्रोडिंगर। तो इन्होंने क्या कहा कि जो हम क्या है अपने टेक्नोलॉजी की हेल्प से बहुत सारी चीजें हम देख सकते हैं, कोई चीज मेजर कर सकते हैं, लेंथ मेजर कर सकते हैं। बट व्हाट वी कैन नॉट डू विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, वी कैन नॉट मेजर हाउ अ पर्सन इज ब्यूटीफुल एंड हाउ अ पर्सन इज अगली। किसी पर्सन का हम ब्यूटीफुल होना और अगली होना नहीं मेजर कर सकते। कोई पर्सन कितना अच्छा है कितना बुरा है उसको मेजर नहीं कर सकते। ओके, किसी पर्सन का, किसी चीज का स्वीटनेस, किसी चीज का पेन, ओके, डिलाइट्स, हैप्पीनेस, इन सारी चीजों का हम कितना भी टेक्नोलॉजिकल एडवांस हो जाए मेजर नहीं कर सकते। तो व्हाट इज दैट जो कि हमारे अंदर स्पेशल है, ओके, जो कि हमें मिला है ओनली। सो दैट इज द एरविन श्रोडिंगर वेव। ओके, ये एरविन श्रोडिंगर जी का थोड़ा सा एक्सपीरियंस है। ओके, उन्होंने अपने थॉट्स रखे हैं। तो हु हैज क्रिएटेड दिस? नेक्स्ट, anyone can read? I need one volunteer, please read. Is there anyone who can read this? Okay, May I, sir? yeah, of course. If you think strongly enough, you will be forced by science to believe in God. Yeah, so that is Lord Kelvin.
केल्विन के बारे में भी आप लोगों ने बहुत सारी थ्योरीज केल्विन की पढ़ी होगी, ओके, लॉर्ड केल्विन की। तो इन्होंने क्या कहा, इफ यू थिंक स्ट्रांगली यू विल बी फोर्स्ड बाय साइंस टू बिलीव इन गॉड। साइंस इज नथिंग, ओके। साइंस क्या है, साइंस भी जब जितना ज्यादा एडवांस होता जाएगा साइंस, सिमिलरली धीरे धीरे वो क्या है, गॉड के क्लोज होता जाएगा। बट क्या, साइंस स्टार्ट करता है जीरो से और धीरे धीरे वो गॉड के क्लोज जाता है, तो उसमें क्या है, बहुत टाइम लगता है, ओके, बिकॉज इट इज डिडक्टिव मेथड। वो जीरो से स्टार्ट करके अप्रोच करता है सब गॉड के साइड। तो इसने कहा, इन्होंने क्या कहा कि जो साइंस है, अगर हम स्ट्रांगली सोचे साइंस के हेल्प से भी, तो हमें क्या होगा, गॉड पे हमारा जो फेथ है वो इंक्रीज ही होगा, वो डिक्रीज नहीं होगा। सिमिलरली बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बहुत सारे थॉट्स रखे हैं अपने, जैसे कि आइजैक न्यूटन है, इनकी एक स्टोरी आती है, मे बी कभी डिस्कस करेंगे आप लोगों से। मैक्स बॉर्न इज देयर, ओके, ये रामानुजन इज देयर। इन्होंने कहा, एन इक्वेशन फॉर मी हैज नो मीनिंग अनलेस इट रिप्रेजेंट्स अ थॉट ऑफ गॉड। सो दैट इज द ऑल थॉट्स ऑफ दिस ग्रेट पर्सनालिटीज, ओके। तो ये सारे वो साइंटिस्ट हैं जिन पे हम बहुत ज्यादा फेथ रखते हैं। दीज आर नॉट ऑर्डिनरी साइंटिस्ट, ओके। सो ये साइंटिस्ट के व्यूज हैं, ये साइंटिस्ट के विचार हैं, ओके। इसके बाद हम क्या करेंगे, $2 million क्वेश्चन एंड okay, so all of you are able to see this question. What is the origin of this universe? All of you can answer in chat box. Option आप लोग आंसर कर सकते हैं चैट बॉक्स में। What is the origin of the universe? A. Big Bang, B. Big Bang, C. Intelligent design, D. Chance. C. Big Bang, okay. Next, और कोई? C. Okay. Anyone else? C. सर सी। C. ओके, ठीक है, इंटेलिजेंट डिजाइन इज देयर, ओके। एक पर्सन ने कहा बिग बैंग, ओके, तो बिग बैंग पे हम डिस्कस करेंगे और वही हमारा इस पॉइंट, ये जो हमारा सेशन होगा इसका लास्ट पॉइंट होगा, बिग बैंग, ओके। बिग बैंग क्या है, बाय द वे इस क्वेश्चन का आंसर है इंटेलिजेंट डिजाइन, ओके। तो आप में से काफी सारे लोग 1 करोड़ रुपए जीत गए हैं, तो आप अपने फैसिलिटेटर से रिक्वेस्ट कीजिएगा, अगर हो सके तो आपको प्रोवाइड कर दें, ओके। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज इट्स पर्पस, ठीक है। अगर यूनिवर्स को किसी इंटेलिजेंट डिजाइनर ने बनाया है, तो इसका पर्पस क्या है, इस यूनिवर्स को बनाने का पर्पस क्या है? फर्स्ट ऑप्शन, ईट स्लीप एंड बी मैरी। सेकंड, कभी खुशी कभी गम। सी, नो पर्पस। डी, टू अंडरस्टैंड गॉड एंड लाइफ। सर डी। ओके, टू अंडरस्टैंड गॉड एंड लाइफ। तो ऑलमोस्ट काफी सारे लोगों का क्लियर है, एज इंडियंस वी आल्सो बिलीव इन गॉड, तो ऑलमोस्ट सबका क्लियर है, ओके। एक चीज डिस्कस करना चाहेंगे बिग बैंग थ्योरी के बारे में। तो बिग बैंग थ्योरी क्या है, यू कैन सी इन दिस नेक्स्ट स्लाइड व्हाट इज द बिग बैंग थ्योरी। तो जो यहाँ पे, या दिस इज द थ्योरी, ये बिग बैंग थ्योरी है जो यहाँ पे स्लाइड में आपको दिख रहा है। तो क्या है बिग बैंग थ्योरी? अकॉर्डिंग टू द बिग बैंग थ्योरी, एवरीथिंग बिगन फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ इनफाइनेटेसिमल टेम्परेचर, infinite density, infinite size, and that is physically indescribable, mathematically unverifiable, beyond all conception of space and time. So that is the Big Bang theory. इन्होंने कहा कि सब कुछ एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ जिसका टेम्परेचर क्या है, इनफाइनाइट है, डेंसिटी क्या है, वो भी इनफाइनाइट है, साइज क्या है, इतना छोटा है कि वो भी इनफाइनाइट है, इनफाइनेटेसिमल है, मींस बहुत छोटा है जिसको आप मेजर नहीं कर सकते, फिजिकली इनडिस्क्राइबेबल, फिजिकल रूल्स से आप उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते, मैथमेटिकली अनवेरिफाइबल, मैथमेटिक्स से वेरीफाई भी नहीं कर सकते, प्रूफ नहीं कर सकते आप, जो स्पेस और टाइम है उससे परे है। तो जो साइंटिस्ट हैं बाद में ये जो बिग बैंग थ्योरी है, या
साइंटिस्ट एक्सेप्ट दिस बिग बैंग थ्योरी, थोड़े समय तक एक्सेप्ट किए, क्यों? क्योंकि इससे अच्छी थ्योरी कोई नहीं थी, इससे अच्छी थ्योरी कोई नहीं थी। ऐसा नहीं है कि ये सही था इसलिए एक्सेप्ट किए, नो, बिकॉज देयर इज नो गुड थ्योरी देन दिस, बिकॉज ऑफ दैट दे आर एक्सेप्टिंग दिस, ओके, दैट इज द रीजन। तो बाद में साइंटिस्ट ने क्या कहा, some scientists has told that it should be emphasized that no theory of origin of solar system as at on general acceptance, कोई थ्योरी अभी तक सोलर सिस्टम में नहीं हो जो जनरल एक्सेप्टेंस को, जिसको सभी लोगों ने मींस एक्सेप्ट किया हो कि इट इज राइट। क्यों? क्योंकि ये जो बिग बैंग थ्योरी है इसमें बहुत हाई एजम्पशंस, हर एक पॉइंट को एज्यूम किया गया है, ओके, किसी चीज को प्रूफ ही नहीं किया जा सकता, only high assumptions is there, okay, so this is the problem inside the big bang theory। और big bang theory क्या कहता है, उस पॉइंट, उस इनफाइनेशनल पॉइंट में जब ब्लास्ट हुआ तो ये हमारा यूनिवर्स क्रिएट हुआ, ओके, दैट इज द थिंग ना। अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी उस पॉइंट से, उस पॉइंट के ब्लास्ट से क्या है, ये सारी चीजें क्रिएट हुई, ठीक है। तो आप में से, आप लोगों में से कितने लोगों ने देखा है बहुत सारे ब्लास्ट होते रहते हैं आसपास, से कभी तो माउंटेन्स में ब्लास्ट किए जाते हैं, कभी ऐसे टेररिस्ट लोग भी ब्लास्ट कर देते हैं। तो आप में से कितने लोगों ने देखा है कि कभी अचानक से ब्लास्ट हुआ हो और एक अच्छा सा घर बन के तैयार हो जाए, एक अच्छी सी ब्यूटीफुल बिल्डिंग, स्काई के ऊपर बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाए, 10 to 14 मंजिला जिसको कहते हैं, ऐसा कुछ देखा आपने? नो नो सर। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है सर। ऐसा पॉसिबल नहीं है, कॉमन सेंस मींस अगर कहीं ब्लास्ट होता है तो उस ब्लास्ट से सिर्फ डिस्ट्रक्शन हो सकता है, कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता, सिंपल थिंग। कहीं पे भी अगर ब्लास्ट हो रहा है तो उससे कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, डिस्ट्रक्शन होगा। एंड दिस यूनिवर्स इज वेरी ब्यूटीफुल, कितना सुंदर है ये यूनिवर्स, ओके, इट सीम्स दैट समवन हैज डिजाइन्ड पर्सनली, ओके, कोई इसको पर्सनली डिजाइन किया है। तो इतना ब्यूटीफुल जो यूनिवर्स है ये किसी ब्लास्ट से कैसे क्रिएट हो सकता है? जिस ब्लास्ट से सिर्फ डिस्ट्रक्शन हो सकता है, उस ब्लास्ट से इस यूनिवर्स का कंस्ट्रक्शन कैसे हो सकता है? ओके, दैट इज द कॉमन सेंस, ओके, दैट्स व्हाई वी डोंट एक्सेप्ट बिग बैंग थ्योरी, ओके, so that is the things, okay, now from my side everything is okay. Rahul sir, you can go forward, whatever you want you can. Yeah, sir. Thank you very much, sir, for explaining the concept of ABCDE. And sir, you also explained the different opinions of the scientist. So student got a clear understanding about the topic. So yeah, so now I am sending the quiz. So all of you attempt this quiz very nicely. And at the end of the this course, we also having the prize. So yeah, we are sending now. Okay, thank you everyone, hope all of you are doing great in your colleges also, and we hope you will do great further only, okay, thank you, we will meet in the next session, okay, have a nice day. Thank you, Thank you. sir. You too. Thank you, sir. Thank you, sir. Yeah, all of you getting the link of quiz. So now we are ending the session. Thank you very much.